I just want to tell you कि within 6 or 7 lectures, I had gone with two virgins, especially summary, characterization, and another things fall apart. I had taken MCQ. Yesterday, I had gone with the Bachelor of Arts by R.K. Narayan, and in Bachelor of Arts, we come to know about the life, the you can say ki a boy who is studying, who is pursuing BA, his lifestyle, and especially being a young man belonging to middle class, we come to know that he falls in love with a girl, and what happens that he distracts. Then he has a bosom friend, Kailas, how Kailas help, and the girl whom he loves, that girl is unnamed girl. That girl is unnamed girl. And especially you will come to know the Bachelor of Arts, it's not only a novel about a boy who is pursuing a graduation from a college, but ultimately it's the story of all the people who were, you can say, living in post-colonial India, especially the people, the young boys of the middle class Indian young boys. You will come to know uh, uh, how they are struggling to get education, they are struggling to seek, they are seeking job, they are also struggling to establish himself, they are in love with someone, that love is one sided. So these things you see, these things you find. Chandran, Kailash, his father is a middle class man, a government employee, he's a clerk, a government employee. But you will find that the situation ultimately turns, the point turns, and you find that a boy who is pursuing BA, a student who is living his life, whose motto must be only to study, how he deviates. Especially it occurs in all the boys, uh, uh, especially who is doing his journey from adolescence to adulthood. Adolescence to adulthood. Such issue we find, such issue we see. तो आज हम लोग we will go in a very detailed way the Bachelor of Arts, Chandran, Kailas, his father, his mother, professors, unnamed girl, middle class family. Especially Chandran is not interested in a subject that is economics. These things we will go. So this class is going to be a very important class. Just sharing with you a PDF file. If it's visible, let me know. Just sharing, just sharing. May I know, is it visible? You can write in chat box, is it visible? Okay, okay, Neha responded, yeah, got it. So you see here, what you see here, ki we are getting this sheet, and in this sheet, we come to know about R.K. Narayan and his novel, The Bachelor of Arts. And when I talk about the summary, first we have to go कि The Bachelor of Arts is a wonderful piece of literature. एक खूबसूरत piece of literature है. It's a wonderful piece of literature. It published in 1937. Number 2 point. And it was Narayan's second novel. It was Narayan's second novel. One of his most celebrated works, that is another thing.
इसका जो सेटिंग है वो कहाँ पे है? फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मालगुडी साउथ, फिक्शनल साउथ इंडियन, एक काल्पनिक दक्षिण भारत का एक शहर डेवलप किया गया नारायण के द्वारा, जिसका नाम क्या है? मालगुडी। तो मालगुडी अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। What do you see कि in the novel the novelist presents the journey of a boy? What is the name of a boy? चंद्रन। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि द बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण का वंडरफुल वंडरफुल पीस ऑफ लिटरेचर है, 1937 में पब्लिश हुआ, और यह उनका सेलिब्रेटेड वर्क्स है। Setting you see where? Setting you see in Malgudi. And what do you see here? You see the journey of that, the journey of a boy. And what is the name of the boy? The name of the boy is Chandran. Especially from adolescent to adulthood, or adolescent to adulthood. You come to hear what? You come to hear ki adolescent to adulthood. And he belongs to what? He belongs to middle class family. He means Narayan doesn't tell any fairy tale. Narayan is not telling about any prince or princess, any kings, queens, warriors, courtiers or ministers, but a young boy who is pursuing BA, belongs to middle class. Uski kya problem? What the issue he has? What the problem he has? That particular problem नारायण has shared. उस प्रॉब्लम को नारायण ने शेयर किया है हमारे सामने। Especially the journey of a boy from you can say adolescent to adulthood. ये बहुत ही ऐसा पीरियड होता है जो बनने और बिगड़ने का होता है। Here parents have to care, especially their feelings, their desires, what they want and what they have to do, and what the society expect from them and what they do want to do, या what's the expectation they have. समाज उनसे क्या तवक्को करता है, उनकी क्या डिजायर्स है, उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दिखाया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टोरी चंद्रन का है वो कॉलेज लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसका स्ट्रगल कुछ एकेडमिक से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उसमें उसके रोमांटिक इन्फेचुएशन को भी दिखाया गया। ही फॉल्स इन ड्यूरिंग बीए या परसुइंग बीए, ही फॉल्स इन लव विद अननेम्ड गर्ल। बार बार ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अननेम्ड गर्ल। परहैप्स आर के नारायण डजंट वांट टू ब्रिंग that girl into limelight. This is why he did not address that girl with her name and put her name behind the curtain and gave the title Unnamed Girl, whom he saw in the street, falls in love, but with the passage of time he finds that it's one-sided love. That girl is engaged with someone, then his heart breaks, he tries to commit suicide, yeah, he makes an attempt to commit suicide. These things we find, these things we go. What I want to tell you, such a chemistry, such an issue, such a problem you see in day-to-day life. Such a problem you see in day-to-day life, especially in Indian scenario, in Indian society. If you turn the pages in early morning, the newspaper, you find these issues, you find these problems. I just want to tell you what can not only you find that he falls in love with a girl, he has romantic infatuation with an unnamed girl, but he also fails in examination. That is another problem. जो चंद्रन है लड़का बीए थर्ड ईयर तक करते करते, सॉरी नॉट बीए थर्ड ईयर, हो सकता है उस समय बीए 2 साल का होता रहा हो, फाइनल ईयर तक जाते जाते he fails. And another academic issue he has कि he does not have any interest in economics. उसका एक सब्जेक्ट में जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसका उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. ये सारा चीजें जो है, आई हियर वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम योर साइड की इतनी मेरी बातें समझ में आ गई. ये पूरा नॉवेल का जिस्ट है. दिस इज द जिस्ट.
middle class family, the journey of a boy Chandran, young boy who belongs to middle class, उसका जो जर्नी है from adolescent to adulthood, falling in love with a girl, the girl is unnamed girl, one-sided love, failing in BA final year, and does not have any interest in economic subject. These things you see, these things you find. लेकिन लास्ट में ये पूरा जो जर्नी है यह दिखाता है कि उसको बाद में अपनी मेच्योरिटी का एहसास होता है, सेल्फ डिस्कवरी का. He finds it, yeah, he understands. In the very end of the novel, we come to know that he understands what the mistake was done from his side. उसने कौन सी गलती की है, कौन सा प्रॉब्लम उसके साथ हुआ, कौन सी गलती उसने की, वो इस चीज को समझता है. कब समझता है? इन द एंड ऑफ द नॉवेल. एंड गलती को एहसास करता है, तो दिस इज व्हाट, जब वो अपनी गलती को एहसास, जो है क्या कहा जाता है, ये सेल्फ डिस्कवरी है. इट्स व्हाट, इट्स सेल्फ डिस्कवरी. Remember that. It's what? It's a self-discovery. Other point you see कि the novel begins with Chandran as an idealistic college student. शुरू में तो वह बहुत idealistic रहता है, college student रहता है. उसका अपना इंटरेस्ट भी पढ़ाई में है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, that is economics. लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो पढ़ाई में मन कम लगता है. उसके अंदर क्या होता है? He has some romantic sensibilities. And what the romantic sensibilities he has? He falls in love with a girl. That girl is unnamed girl. Love with a girl, especially when he sees, या when he encounters that girl on the street. ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है. क्वेश्चन पूछा गया कि he sees that girl for the first time in market, in street, in his house. कहाँ पर? तो उसका इनकाउंटर होता है उस गर्ल से स्ट्रीट पे. It's what? It's the middle class love. Middle class love. Not that time there was no big bazaar. That time there was no, you can say, Z Square. No shopping mall. These things you can't see that time, especially middle class life. So street, sadak, all these things, park. This unrequited love becomes an obsession that future distract. अपना स्टडी से क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. कब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, स्टडी उसका पूरा नहीं होता. ही फेल्स. जब वो फेल हो जाता है तो परिवार में फादर उसको जो है डांटेंगे, जरूर डांटेंगे. मदर का कुछ तवक्को होता है, लेकिन मदर उसको क्या करती है, बहुत पोलाइट वे में. मिडिल क्लास फैमिली को उसमें दिखाया गया कि वो फेल तो हो जाता है, लेकिन माता पिता पढ़े लिखे तो इस इशू को बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाते, बहुत पोलाइटली उसको डील करते हैं, समझाते भी है, डांटते भी है, एक बैलेंस बना के रखते हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया कि मिडिल क्लास का आदमी अपना जीवन कैसे गुजारता है. हाउ द पीपल ऑफ द मिडिल क्लास पास देयर लाइफ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. When he discovers that the girl is engaged to someone else, his world collapses. यही कि he falls in love with that girl when he encounters her on the street, but with the passage of time he comes to know that his love is one-sided love. That girl is engaged with other person. तभी उसकी पूरी दुनिया, रोमांटिक वर्ल्ड जो क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है. और वह क्या करता है? He just attempts suicide. Last moment पे he turns his thought that he has not to commit suicide for the sake of a girl. He has some other responsibilities for the family, for the society, for his parents. So he delays, he postpone, उसको postpone कर देता है. You will find here कि इतना ही नहीं होता, बल्कि वो BA में फेल हो जाता है. All these things we find. ये सब जब घटना होती है तो उससे वह लर्न भी करता है. ऐसा नहीं कि he learns something for what he learns कि that he is in love, but when he comes to know that that girl is in love with someone other person, his romantic world collapse. Then he comes return to the world of reality. What I want to tell you, वो हकीकत की दुनिया से रूबरू होता है, हकीकत की दुनिया में वापस आता है.
और उसको पता चलता है कि इट वाज अ रोमांटिक वर्ल्ड व्हेन ही इनकाउंटर्ड अ गर्ल स्पेशली ऑन द स्ट्रीट। तो उसको वो रोमांटिक वर्ल्ड नजर आता है, वो खूब अपनी दुनिया में मदमस्त है, खूब आराम से रह रहा है, खूब ख्वाब देखता है, खूब सपने अपना जगाता है, बसाता, वट एवर यू कैन से। लेकिन when he comes to know the reality, तब उसे पता चलता है नो दिस इज द हकीकत, दिस इज द रियलिटी। तो नारायण की एक खासियत है कि ही प्रेजेंट द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास, बट टू प्रेजेंट द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास ही गोज विद रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके नावल में रियलिज्म भी है, रोमांटिसिज्म भी है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज कमिटिंग सुसाइड, सुसाइड का प्रयास करना मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड इन न्यूज पेपर, डेली हम लोग पा रहे हैं, जो खासकर आजकल जो इस तरह की चीजें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वह जो है लर्न करता चीजों को, वो समझता है कि उसका जो है घर कितना इंपॉर्टेंट है, तो वह घर को वापस आता है, एग्जामिनेशन फिर से तैयारी करता है, पढ़ता है, एग्जामिनेशन वगैरह अपना वो करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन एक न्यूज़पेपर में करेस्पॉन्डेंट का काम करता है, कुछ कमाई का जरिया भी। तो जो ग्रेजुएशन उसने उस समय किया कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश राज में या इस तरह का, चूंकि नावल आपका 1937 का है तो घटना 1937 का, इसका मतलब ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज में जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम को भी चैलेंज किया गया है। इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन जो वैल्यूज है उसको भी लेकर के बात की गई है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड here it has been told that कि after completing graduation he is unemployed seeking job, he gets a job as a correspondent, एक पोस्ट होल्ड करता है in a newspaper। then you find that कि उसके अंदर मेच्योरिटी डेवलप होती है, he understands लाइफ को समझता है, लव को समझता है, और उसका क्या प्लेस है सोसाइटी में वह उसको समझता है। ये लाइन क्या है? ये लाइन उसका सेल्फ डिस्कवरी है, उसको अपने अपने वजूद का एहसास होता है। ही नोज what he is, he knows ki why almighty god has created him, he knows what the role he has in society, he knows for what god has created him। वह यही चीज जब इंसान जानता तो दैट इज सेल्फ डिस्कवरी। फिर वो क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाता है, फिर वो तमाम जो रोमांटिसिज्म है उस दुनिया से बाहर निकलता है, वो जो है जो डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, उससे बाहर निकलता है, रोमांटिक वर्ल्ड से बाहर निकलता है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आता है, और तब समझता है कि आई हैव माई, जो मेरा वजूद है, माई एग्जिस्टेंस या माई बर्थ इन दिस वर्ल्ड इज फॉर सम noble task, some noble task has been given, some noble deeds have been given by almighty god, assigned by almighty god, I have to complete them, that works belong to family, that works belongs to society। तो चंद्रन इसको एहसास करता है एंड इट्स नोन एज सेल्फ डिस्कवरी। जो नावल है अगर आप देखेंगे उसका जो कंक्लूजन है वह एक डिग्री में अगर देखा जाए तो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट को भी दिखाया गया, लेकिन प्रैक्टिकल को भी दिखाया गया। एक तरफ तो इमोशन भी है और प्रैक्टिकल वितम व्यवहारिक ज्ञान भी है। और जो टुडे का वर्ल्ड है, जो टुडे के वर्ल्ड में जो चैलेंज है, वह उस सारे चैलेंज को फेस करता है एंड यू फाइंड रेजिलियंस एंड यू फाइंड अंडरस्टैंडिंग। व्हाट वी कम टू नो, वी फाइंड रेजिलियंस एंड वी फाइंड अंडरस्टैंडिंग, दीज थिंग्स वी कम टू नो। तो चंद्रन एक कैरेक्टर जरूर है, लेकिन वो चंद्रन ब्रिटिश राज में पूरे भारत के लोगों का जो मिडिल क्लास लाइफ था उसकी आवाज है। और मैं कहूंगा कि वो केवल ब्रिटिश राज में नहीं, आज के भी भारत में जो मिडिल क्लास है उसकी लाइफ लगभग वैसी है, उनके बच्चों की भी लाइफ वैसे ही है। ये जरूर है कि वी हैव स्मार्टफोन, वी हैव डिजिटल क्लासरूम, वी हैव एआई, वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव सो मेनी सोशल, आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है जो है कनेक्ट होने के लिए, टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। लेकिन आज भी जीवन वही है कि हमें रियलिस्टिक लाइफ जीना है, हमें पढ़ना है। मिडिल क्लास में वैकेंसीज है, टीचिंग जॉब का है, क्लार्क का है, और भी जो चीजें हैं वो सब कौन अप्लाई करता है? द पीपल ऑफ मिडिल क्लास।
जो बड़े बड़े घराने हैं, अंबानी घराना, अडानी घराना, टाटा घराना, उनके बच्चे थोड़ी कि दे हैव टू बी अ टीचर, वो तो तमाम यूनिवर्सिटीज वगैरह खोले पड़े हुए, उनको इसकी जॉब की जरूरत नहीं है। तो Chandran is a universal character. Try to understand. The problems of Chandran is not only the problem of Chandran, it's beyond time and place. ये वक्त से, समय से परे है, वो इशू आज भी रेलिवेंट है, उस तरह का जीवन आज भी हम देखते हैं। तो इट बिकेम अ यूनिवर्सल कैरेक्टर दैट्स बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस। देन यू फाइंड क्या है मेजर थीम। मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया, इससे ज्यादा इस पॉइंट को हम नहीं खींच सकते हैं। Are you getting my voice? Okay, okay, good. Neha has responded. Sheet is not visible. Sheet is not visible. Visible, sir, visible. Neha, maybe from your side it might be networking issue, and side by it might be networking issue. I would like to say ki, join again, join again. It will be visible. So another point which I have to take, and what are those points? Those points are especially theme, what the issues have been raised by R.K. Narayan through this novel, yeah, in this novel. R.K. Narayan has raised the issue. R.K. Narayan has raised the issue. What the issue he has raised? He has raised the issue coming of age and self-discovery. Already I told you, I will not read each word, but I will only explain what the thing you find here. You find here that it's when we talk about age and self-discovery, it's about Chandran, especially his Bildungsroman journey from adolescent to adulthood, adult realism. जब वह एडोलिसेंट है, किशोरावस्था में, तो आइडियलिस्टिक बहुत है और रोमांटिक बहुत है। जब वह एडल्टहुड को ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, देन यू सी व्हाट कि वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में आता है। उसके एकेडमिक फेल्योर को दिखाया गया, अनसक्सेसफुल लव को दिखाया गया, प्रोफेशनल चैलेंजेस को दिखाया गया, एंड स्पेशली द ट्रांसफॉर्मेशन यू फाइंड कि ड्रीमी, इम्प्रैक्टिकल यू, दीज थिंग्स यू सी कि यू फाइंड हियर। And other things you find कि the novel explores how painful experiences contribute to personal growth and emotional maturity. These things you also see. The next point is what? The next point is the conflict between romance and reality. Already I explained कि romance and reality examination में fail होना यह एक real घटना है। What is romance? One-sided love is romance. But when he comes to know that this girl is engaged with another person, वो इस रियलिटी से वाकिफ होता है तो वह रियल वर्ल्ड में वापस आता है। तो रोमांस और रियलिटी का आप इसमें देख सकते हैं, तमाम घटना का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बाद में ये भी देखते हैं कि उसको मेच्योरिटी का एहसास होता है, वह उधर भी उसका जो एकेडमिक स्ट्रगल है वह एक रियलिटी है, फेल होना एक रियलिटी है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ना होना एक रियलिटी है। Then you find what? Then you find की educational and discontents. The novel offers a nuanced critique of the colonial education system in India. Colonial education system in India. जो ब्रिटिश राज रहा है, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज स्पेशली द एजुकेशन सिस्टम जो था वो बहुत बेहतर नहीं था। while education represents hope for social mobility, तो उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम है
उससे द पीपल्स वर या स्टूडेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड। जो प्रोफेसर्स है जो स्टूडेंट्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी लेकर के बात की गई है। मिडिल क्लास एस्पिरेशंस और एंजाइटीज को ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि द नॉवेल डील्स विद मिडिल क्लास इशूज, मिडिल क्लास लाइफ, उसको भी लेकर के बात किया गया है। चाहे यह होप खुद जो है चंद्रन का हो, उनके पेरेंट्स का हो, या जो एक एडल्ट एडोलिसेंट से एडल्टहुड का जो चंद्रन की जर्नी है, उस समय क्या डिजायर्स होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, सोसाइटी क्या उम्मीद करती है, एक व्यक्ति का क्या डिजायर होता है, एक व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा रोल क्या सोसाइटी में है, मेरा प्लेस क्या सोसाइटी में, व्हाट द रोल आई हैव टू प्ले इन सोसाइटी, उस सब चीजों को लेकर के जिक्र किया गया है। ट्रेडिशनल बनाम मॉडर्निटी को भी लेकर के बात की गई है। सब ट्रेडिशनल रोल्स और जो मॉडर्निटी है जो उसका क्लैश है उसको लेकर के बात की गई है। द नेचर ऑफ फेल्योर एंड सक्सेस को लेकर के बात की गई कि इफ यू बिकम फेल, इफ यू डिडंट क्रैक बीए डिग्री कोर्स या बीए एग्जामिनेशन, इट डज नॉट मीन दैट यू फेल्ड इन योर लाइफ। इफ यू फेल्ड इन लव, इट डज नॉट मीन दैट इट्स व्हाट इट्स कंक्लूडिंग द लाइफ। नो, नॉट एट ऑल। फेल होने का मतलब ये कहीं से नहीं है कि द वेज ऑफ लाइफ आर ब्लॉक्ड, देयर इज नो अदर चॉइस और नो ऑप्शन। व्हेन यू बिकम फेल, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अनदर पाथ, टू क्रिएट अनदर पाथ। और जो आदमी हार करके जीतता है वह दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। जो बगैर स्ट्रगल किए कोई चीज जीत लिया तो उसको उस जीत का एहसास नहीं होगा। जैसे बड़े घराने के बच्चों को सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है, दे डोंट फाइट, दे डोंट स्ट्रगल, दे डोंट फेस हर्डल, तो वो सबको उनको उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता, दे डोंट गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। तो इस नेचर को भी दिखाया गया और जितनी भी बातें दिखाई गई सब चंद्रन के माध्यम से दिखाया गया। कैरेक्टर को लेके मैंने बात किया कि चंद्रन जो मेन है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, ये सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंसिटिव और आइडियलिस्टिक यंग मैन है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मालगुड़ी में उसकी फैमिली रहती है, और अगर देखा जाए शुरू में उसको दिखाया गया ड्रीमी है, इम्प्रैक्टिकल शुरू में, चूंकि वो एडोलिसेंस की एज में रहता है, रोमांटिक लाइफ में जीता है, लेकिन बाद में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसका रोमांटिक सेंसिबिलिटी सब चकनाचूर हो जाता है और वह एकदम प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में वापस आता है। देन यू फाइंड कि जो कैरेक्टर है चंद्रन अंडरगोज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉवेल। हिज इनिशियल आइडियलिज्म में हम सब लोगों को पता चलता है कि कैसे वह बैलेंस करता है चीजों को लेकर के, वो एक तरह से स्ट्रगल करता है। तो उसका जो 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 उसका कैरेक्टर है उसमें असफलताएं भी है, सफलताएं भी है, रोमांटिसिज्म भी है, रियलिज्म भी है, लव भी है, लव में जो है फेल होना भी दिखाया गया है, जीत भी है और हार भी है, लास्ट में सेल्फ डिस्कवरी भी है और एक तरह से एक्सपेक्टेशन भी है। नेक्स्ट पॉइंट यू सी कि चंद्रन सिंबल है, किसका सिंबल है? एजुकेटेड इंडियन यूथ का। 1930 के दशक में जो युवक थे वो उनका एजुकेशन कैसे था, उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता था और वे कैसे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन और मॉडर्न एस्पिरेशन के बीच में कैसे फंसे। जो इंडियन वैल्यूज सिस्टम है, जो मॉडर्निटी है इंडिया का, उसके बीच का जो क्लैश है, दे आर ट्रैप्ड इन दोस थिंग्स, struggling to find identity and purpose, all these things. Then you come to know about कैलाश, जो कि चंद्रन का बेस्ट फ्रेंड है, जो उसका कानफिदा है, विश्वास पात्र है, और प्रैक्टिकल मैन है, प्रैक्टिकल विजडम उसके अंदर है, वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है। चंद्रन को बहुत समझाता है, जब चंद्रन रोमांटिक लव में या रोमांटिसिज्म में होता है तो उसको लेकर के वो बात करता है, उसको समझाता है। जो उसका फंक्शन है नॉवेल में अगर आप देखेंगे तो वो एक तर्क देता है, प्रैक्टिकल आदमी है, कॉमन सेंस है। उसका फ्रेंडशिप जो चंद्रन से वह एक उदाहरण स्वरूप है कि वह जब चंद्रन स्ट्रगल में है, व्हेन ही इज स्ट्रगलिंग दैट टाइम
कैलाश इज विद चंद्रन। तो अ ट्रू फ्रेंड इंडीड इज अ ट्रू फ्रेंड इंडीड। जरूरत के समय जो दोस्त काम आए वही सच्चा दोस्त है। ये कहावत चंद्रन के समय को लेके सही, सॉरी कैलाश को लेकर। देन यू सी चंद्रन के फादर जो गवर्नमेंट क्लार्क हैं, मिडिल क्लास वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं, हार्ड वर्किंग है, एजुकेशन को उन्होंने अचीव किया हुआ है और सोचते हैं कि उनके बच्चे भी एजुकेशन को करें, लेकिन वो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज को छोड़ते नहीं है। ये भी चीजें कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, ओल्डर जनरेशन वैल्यूज को और प्रैक्टिकल रियलिटीज को, मिडिल क्लास लाइफ को जीते हैं। उनका जो रिलेशनशिप है चंद्रन के साथ बहुत बेहतर नहीं होता है, शुरू में कॉन्फ्लिक्ट वाला है, लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है। देन यू फाइंड कि चंद्रन का मदर जो है वो ट्रेडिशनल वुमन है, जो पैट्रियार्की के ट्रैप में है, डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन उनका जो लव है अपने बेटे के प्रति वह अनकंडीशनल लव है और वो हर हालत में उसको सपोर्ट करती है, चाहे चंद्रन फेल हो जाए, चाहे पास हो जाए, चाहे कोई उसकी आलोचना करे, लेकिन वह उनकी नजर में उनका बेटा है और वह उसके साथ खड़ी नजर आती है। अंडरनेम गर्ल की कहानी भी यार लो कि वो लड़की जिसके साथ चंदन का अफेयर होता है बट वन साइडेड रहता है, चंदन को पता चलता है शी इज इन लव विद अदर, तो उसको बहुत दुख होता है। लिटरेरी फंक्शन में अगर आप देखेंगे वो लड़की का नाम अननेम्ड है, चंद्रन का लव उसके प्रति, इसमें कुछ और अलग चीज नहीं दिखाया गया। कॉलेज के प्रोफेसर और फेलो स्टूडेंट्स का भी रोल है, किसी खास प्रोफेसर को यहाँ पे बात नहीं की गई है, लेकिन वो उस समय की एजुकेशन और उसके सोशल इन्वायरमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि जो एजुकेशन है कैसा है, इज इट फ्रूटफुल आर नॉट, इज इट वैल्यूएबल आर नॉट, इज इट अप टू मार्क आर नॉट। They provide various perspectives on academic life, social relationship, and career preparation. Plot analysis क्या है? Structure and pacing. The novel follows a traditional chronological structure. The mirrors चंद्रन से डेवलपमेंटल जर्नी उसको लेकर के है। अब नॉवेल में कुछ नहीं है, जो मुझे जितनी बात करनी थी वो सब मैंने आपको बता दिया। कुछ जो है पार्ट में बताया गया, जैसा पहला पार्ट कॉलेज लाइफ और रोमांटिक अवेकनिंग का है, ये आपको खुद से पढ़ना, ये सारा मैंने डिस्कस किया है। दूसरा पार्ट उसके क्राइसिस और फेल्योर को लेकर के है। तीसरा पार्ट वेंडरिंग और सेल्फ डिस्कवरी है। चौथा पार्ट रिटर्न एंड इंट्रीग्रेशन। कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है जिसमें मैं एक दो लाइन पढ़ना चाहूंगा कि ये जो नावल है, ये पहला नावल है जो मिडिल क्लास लाइफ को बात करता है, इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को बात करता है, जो इंडियन ऑथर द्वारा लिखा गया। इसमें इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को जब लेके बात की गई तो उसमें सिंपैथी भी है, रियलिज्म भी है, इस चीज को लेकर के दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे कि जो नारायण की राइटिंग स्टाइल है उसमें सिंप्लिसिटी है, एसेसिबिलिटी है, जेंटल आयरनी, कंपेशनेट ऑब्जर्वेशन है, रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने दिखाया है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज को दिखाया गया है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म को उन्होंने दिखाया हुआ है और ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ को लेके बात किए गए। थीम्स एंड देयर डेवलपमेंट को यूनिवर्सल कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, सोशल कमेंट्री है, लिटरेरी इन्फ्लुएंस और इनोवेशन है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसे मैं पढ़ूंगा। नावल का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? ऑथेंटिक पोर्ट्रेट ऑफ मिडिल क्लास लाइफ को बहुत ही ईमानदारी से और हकीकत की धरातल पर दिखाया गया है। मिडिल क्लास लाइफ के साथ सिंपैथी भी है, रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन है, इफेक्टिव यूज ऑफ जेंटल आयरनी और ह्यूमर है, क्लियर एक्सेसिबल प्रोज स्टाइल है, यूनिवर्सल थीम है, बैलेंस ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल और पर्सनल इश्यूज है। नॉवेल का लिमिटेशन क्या है? पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को बहुत कम दिखाया गया है। रिलेटिवली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर रोल्स यहाँ पे है कि इतने लिमिटेड में। सब क्रिटिक्स आर्गू फॉर इनसफिशिएंट एंगेजमेंट विद लार्जर हिस्ट्री स्पोर्ट्स, इसमें बहुत ज्यादा हिस्ट्री की चीजों को लेकर के नहीं दिखाया गया है। द रिजोल्यूशन में सीम टू डीप। तो ये सब जो चीजें एक पॉइंट हो सकता है बट उतना वो रेलिवेंट मेरी नजर में नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने आपको उसके पहले की बातें बताई है। तो होप यू ऑल हैव enjoyed the session. You got the point. Okay, the name of young girl was Malathi.
Okay, there is a question from Saeed Bhai. There is a question, and she's asking ki someone told that the name of that girl was Malathi. I didn't get this point. If you find this point, so I will try my best ki to go with this point too. और अभी तक जो मैंने पूरा पढ़ा उसको उन्होंने अननेम्ड गर्ल ही रखा. मुझे जहां तक याद है कि मलाथी इज नॉट अ कैरेक्टर इन दिस नॉवेल. शी इज अ कैरेक्टर ऑफ आर के नारायण बट इन अनदर नॉवेल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, लेकिन मुझे समय चाहिए इसको क्लियर करने के लिए. जैसा आपको किसी ने बताया तो मैं इसको जब तक क्लियर नहीं कर लूंगा तो आई एम नॉट श्योर एट ऑल. आफ्टर I will be able to tell you ki whether the name of the girl was Malathi or not, but I think perhaps not. So I just want to know from your side ki how did you find the session? We have Parmesh ji, Ishra ji, Said ji, Neha ji, and Pratik ji. You can unmute and just share one by one कि कुछ और आप चाहते हैं, कुछ और नए पॉइंट्स को हमें लाना चाहिए या ठीक है. Okay, nice explanation. Perhaps Sabha has responded. Okay, okay, okay. Some more comment from Ishrat, Neha, and Pratik. Yeah, you can unmute and say something. Okay. Even you can send me message if you have any suggestion. If you want something more, you can just send me message individually via WhatsApp. Neha wrote nicely explained. Thanks, Neha. Thanks for your beautiful word. Okay. Meet you tomorrow. Okay, meet you tomorrow.